Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in my previous video I have started a new unit of your maths textbook. If you're watching the videos regularly, then you must be aware of it. The name of the unit is, as you can see on the board, the measurement of weight or measurement of mass. I have written weight, but it is actually mass. I have written it for you so that the meaning is clear to you. It is the name of the chapter is actually measurement of mass, but I have written it weight for you so that the meaning is clear to you. Okay. In this unit, I have introduced you in my previous video that we have to measure the weight of many things, and for measuring the weight, we need certain unit. In my previous video, I discussed with you the random or the arbitrary unit of measurement. Let me revise that for you once. Children, as per the examples given in your book, there are three persons, 2 children and 1 teacher. One child named Harsh, he weighted an apple. He weighed an apple using marbles, and the weight of that apple is equal to 5 marbles. Then another child, he also weighed the same apple but using wooden blocks, and this time the weight of same apple is equal to 3 wooden blocks. Then the same apple was weighed by teacher, and he used chalks for weighing the apple, the same apple. And this time the weight of the apple is equal to 10 chalk sticks. Now the apple is same, but the weighing object is different each time. First time marbles were used, second time wooden blocks were used, and third time chalk sticks were used. So the weight of the apple is different each time because different objects were used for measuring the weight of that same apple. Everyone was correct. The boy, the girl and the teacher, they all were right, because as per their object, the object that they use for weighing that apple is different, so they got a different result. But the individual answer is correct, the teacher is correct, the girl is correct, and the boy is also correct. But since the objects were different, the results were different. So using such objects for measuring weight of something are called random units or arbitrary unit. They are not standard unit, they are non-standard unit of measurement. उसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, बिकॉज everybody cannot have that same very thing for measuring particular thing. अगर मुझे उसी एप्पल को मेजर करना होगा तो आई मे नॉट हैव द सेम मार्बल्स, आई मे नॉट हैव द सेम वुडन ब्लॉक्स, आई मे नॉट हैव द सेम चॉक स्टिक्स, आई मे वे इट विद सम अदर ऑब्जेक्ट. वो सबके पास अवेलेबल नहीं होगा जिससे कि वो बच्चों ने या टीचर ने एप्पल को के वेट को मेजर किया था. इट मे और मे नॉट बी अवेलेबल विद एवरीबडी. सो what we needed a standard unit of measurement so that everybody can use that, so that it is available with everybody. कोई कहीं भी रहे, कहीं भी से भी उसको यूज कर सकता है, whether living in the same city, whether living in different city, different state, different country, but the result should remain same for weighing the same object. अगर उसी एप्पल को मैं मेजर करूं या कोई भी व्यक्ति मेजर करे, कोई भी पर्सन मेजर करे यूजिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट, द रिजल्ट विल बी सेम. कोई बच्चा मेजर करेगा तो भी वही आंसर आएगा, अगर कोई एडल्ट मेजर करेगा तो भी सेम आंसर आएगा, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे वेट को मेजर करने का. ओके.
Now what is the standard unit then? It is kilogram. Okay, kilogram, in short we call it kg, is the standard unit of measuring weight. Okay, this is the standard unit of measuring weight. But if some item, if some object's weight is less than kilogram, अगर किलोग्राम से कम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? दैट इज मेजर्ड इन ग्राम. उसको हम मेजर करेंगे ग्राम में. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड जी. ठीक है, ग्राम में मेजर करेंगे. बट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इज किलोग्राम. आपने देखा होगा, आप शॉपकीपर के पास जब जाते होंगे तो आप अगर आपके घर में जो बड़े लोग जो शॉपिंग करते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदते होंगे, तो वो ऐसे बोलते होंगे ना वेजिटेबल वाले वेंडर से कि भैया 1 किलो आलू देना, भैया 2 किलो आलू देना. दैट किलो इज एक्चुअली किलोग्राम. हम शॉर्ट में किलो भी बोल देते हैं. ठीक है, किलोग्राम ना बोल के किलो भी बोलते हैं कि भैया 5 किलो आलू दे दो, भैया 2 किलो मटर दे दो, भैया 1 किलो टमाटर दे दो. तो ये किलो जो यूज करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट. तभी आपने ये सारी चीजें सुनी होगी किलोज में. आप आटा भी लेते हैं घर में, अगर बड़े लोग, नॉट आप अभी छोटे हैं, बट आपके जो घर के जो बड़े लोग हैं, जब वो शॉपिंग करते हैं प्रोविजन स्टोर पे जाके, तो चीनी भी मांगेंगे, आटा भी मांगेंगे. 10 किलो आटा दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, तो किलो यूज करते हैं. दैट किलो इज एक्चुअली किलोग्राम. बट इट. और अब ग्राम की बारी. अगर कोई कम चीज है, किलोग्राम से कम है, अब जैसे धनिया चाहिए, तो धनिया को किलोग्राम में तो लेता नहीं, तो ऐसे बोलते ना, भाई 5 रुपए का धनिया दे दो, तो वो क्या किलोग्राम में देगा? ही विल गिव 2-3 ग्राम्स ऑफ धनिया, ग्राम्स. ठीक है, अदरक है, मिर्ची है, तो वो हम ग्राम्स में लेते हैं कि भैया 250 ग्राम दे दो. 250 ग्राम यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है? 250 ग्राम होता है. 250 ग्राम, 250 ग्राम. ठीक है, तो ये किलोग्राम से कम यूनिट हुआ. छोटी कम चीजें जब हम लेते हैं तो वो ग्राम में लेते हैं. ठीक है, किलोग्राम में नहीं लेते हैं, उसको सिर्फ ग्राम में लेते हैं. मैंने बताया जैसे धनिया लिया, मिर्ची लिया, या कोई ऐसी छोटी चीज, उसको हम ग्राम में लेते हैं. इवन जो ज्वेलरी होती है वो भी वेट के हिसाब से मिलती है, तो वहां भी ग्राम्स यूज होते हैं. अब ये ग्राम क्या है? 1000 ग्राम मेक्स 1 किलोग्राम. मतलब 1000 ग्राम को अगर आप मिलाएंगे तो वो इक्वल टू होगा 1 किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. आपने अब ये ग्राम्स को मेजर, ये तो हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं, व्हाट वी यूज, तो आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ड्रॉ करके भी बताया था कि वेट्स होते हैं, उसको वेट्स ही कहा जाता है. भार जिसको बोलते हैं, या वजन जिसको हिंदी में बोलते हैं. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड वेट. जो लोहे का होता है, ऐसा भारी भारी सा होता है, और वो अलग अलग वेट का मिलता है. जैसे कि 1 किलोग्राम का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, जैसी रिक्वायरमेंट होती है. वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं स्पेशल, वो लोग 1 किलो, 2 किलो का या 5 किलो का रखते हैं. जो बड़े प्रोविजन स्टोर्स हैं, गोडाउन्स वाले जो हैं, होलसेलर्स हैं, वो 10 kg 20 kg का भी वेट रखते हैं. उसके अलावा छोटे यूनिट के भी वेट मिलते हैं, 500 ग्राम्स का, 250 ग्राम्स का, 50 ग्राम्स का भी, 100 ग्राम्स का. इन सब ग्राम्स के भी वेट मिलते हैं. और मैंने आपको बताया था कल ड्रॉ करके, वो हेक्सागोनल शेप में होता है, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस. आई एम यूजिंग द वर्ड समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली. ऐसा नहीं बना पा रही हूँ. ऐसा कुछ होता है. ठीक है, समथिंग ऐसा वेट होता है.
आप जब भी आप जाओगे वेजिटेबल वेंडर या फ्रूट वेंडर के पास, तो आप नोटिस करना उसके पास ऐसे लोहे का होगा, ऐसे हेक्सागोनल शेप में, और उसके पीछे लिखा होगा उसकी वैल्यू कि वो उसका वेट कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, या 500 ग्राम है, या 50 ग्राम है, या 100 ग्राम है. प्लीज गो एंड व्हेनेवर यू गो, नोटिस इट नाउ. दिस टाइम आपने इससे पहले नोट नहीं किया होगा, अब नोट करना आप कि उस पर कितना वेट लिखा है. आपकी मम्मी ने अगर बोला है कि भैया 2 किलो आलू दो, तो देखो कि उसने जो वेट रखा है तराजू पर, जो बैलेंस स्केल होता है, उसका जो पैन्स होते हैं ना, तो एक पैन में वो सामान रखेगा और दूसरे पैन में वेट रखेगा. तो अगर सपोज पोटैटोज लिए हैं, तो मम्मी ने बोला 2 kg पोटैटोज दे दो भैया, तो एक पैन में वो 2 kg पोटैटो रखेगा और दूसरे जो पैन है उसमें वो वेट रखेगा. तो नोटिस करना कि वो जो वेट रख रहा है उस पर कितना लिखा है. 1 kg लिखा है, 2 kg लिखा है, या 1 kg के 2 उसने वेट्स रखे. ऐसा भी हो सकता है कि 1 kg के वो 2 ऐसे वेट्स रखते, तो वो भी 2 kg हो गया. या 2 kg का एक सिंगल वेट भी रख सकता है ना. तो यहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 500 ग्राम्स का ही वेट हो, तो 500 ग्राम्स का वो 2 वेट रखेगा तो 1 किलो होगा, फिर दोबारा से 500 ग्राम्स का रखेगा तो होगा. यू हैव टू चेक कि वो 2 kgs हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, आप चेक करना इसको. फिर उसके अलावा जैसे मैंने बताया, आटा चक्की अगर पे जाओगे तो वहां पर आपको बड़े वैल्यू वाले वेट मिलेंगे. 10 kg, 20 kg ऐसा आपको देखने को मिलेगा. वहां पर भारी भारी से होते हैं. यू विल नॉट बी एबल टू पिक इट विद योर हैंड्स. वो बहुत भारी होता है, आप हाथ से शायद नहीं उठा पाओगे. तो ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर फाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ. हम उसको अपने आसपास देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं. तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ बुक में है, बुक की नॉलेज है. ये हम अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं. अब हम बात करेंगे एडिशन की. एडिशन ऑफ वेट. जैसा हमने एडिशन ऑफ लेंथ किया था, वैसे ही एडिशन ऑफ वेट भी करेंगे. इसमें भी जैसा आप नॉर्मल एडिशन करते हो, इट इज एग्जैक्टली द सेम वे. यू हैव प्रैक्टिस, यू हैव लर्नड हाउ टू ऐड. आपको ऐड करना आ गया है. यू हैव ऑलरेडी डन मेनी सम्स ऑफ एडिशन. So teaching of addition is not there, but of course what I will explain you is that while adding you have to take care of the units. Units में क्या देखना है? Kilogram and gram. Kilogram should be added with kilogram only. Grams will be added with grams only. Got it? केजी को केजी के साथ ऐड करेंगे, ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करेंगे. अगर बोरो भी करना है तो ग्राम वाले में से ही ग्राम को बोरो करेंगे, किलोग्राम वाले में से ही किलोग्राम को ऐड करेंगे, बोरो करेंगे. जब हम यूनिट, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर अगर सिंगल डिजिट है तो उसका प्लेस वंस होता है. अगर 2 डिजिट का कोई नंबर्स है तो एक वंस हो जाएगा, उसके साइड में टेंस हो जाएगा. अगर 3 डिजिट का है तो वंस, टेंस और 100 हो जाएगा. बट इन केस ऑफ दीज वेयर द यूनिट्स आर इन्वॉल्व, ये वंस, टेंस, 100 का प्लेस भी ग्राम का अलग होगा और किलोग्राम का अलग होगा. हम मिक्सअप नहीं करेंगे इनकी प्लेसेस को. ठीक है, करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा. लेट्स डू इट फर्स्ट. ओके, चलिए पहले हम क्या करते हैं, ग्राम, सिर्फ ग्राम वाले को ऐड करेंगे, ओनली जो ग्राम में है. ऐड 3, I'm writing the question here first. 3
112 gram and 127 gram. G stands for gram. G का मतलब होता है ग्राम. अब ये देख रहे हैं both the numbers are in gram. दोनों का यूनिट जो है वो सेम है. ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है. तो इन दोनों को ऐड करने में देयर इज नो प्रॉब्लम एडिंग दीज टू नंबर्स. दोनों ग्राम है, दोनों का यूनिट मतलब सेम है, तो हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट्स ऐड दिस. Now, as I have told you, whenever we have more than 2 digits, या सिंगल डिजिट भी है तो भी अंडरस्टूड. ये 1 से, ये 10 से, ये 100. 1 10 100. ओके, कीप दिस इन माइंड. ये प्लेसेस हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर हमेशा ही काम आएगा आपको सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी. दोनों में ही आपके काम आएगा ये जो प्लेसेस हैं. तो अभी इसका यूज नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं जरूरत है, बट यू विल as we will move in this exercise, we will come across where we will be requiring the places also. तो अभी हम कर लेते हैं and 7 plus 2 या 2 plus 7. What will be the answer? 7 में आपको 2 plus करना है. This I have already taught you कि जब bigger number होता है तो उसको mind में रख लेते हैं, smaller number on finger. 7 mind में और 2 फिंगर पे. तो 7 के माइंड में उसके आगे से गिनेंगे 8 and 9. तो we will write here 9. Then 2 plus 1. 2 plus 1 easy, it is 3 and 3 plus 1 is 4. This G is very important. इसको यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इसी से आपको पता चले कि ग्राम में है कि किलोग्राम में आंसर है. ठीक है, तो नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट. आंसर इज 439 ग्राम, क्योंकि दोनों ही यूनिट ग्राम की थी तो आंसर भी आएगा हमारा ग्राम में. 439 ग्राम. अब हम 1 किलोग्राम का कर लेते हैं. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और ये भी किलोग्राम. Add 28 kg and 45 kg. Add 28 kg and 45 kg. Now you have seen that here it is also kg. मतलब दोनों नंबर का जो यूनिट है that is same. यहाँ भी किलोग्राम है और यहाँ भी किलोग्राम है. मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, उन दोनों नंबर्स का यूनिट सेम है, दोनों ही किलोग्राम्स में है. तो किलोग्राम का किलोग्राम के साथ ही ऐड कर रहे हैं. ओके, सो विल राइट हियर 28 kg 45 kg. अब अगेन ये 1 से, ये 10 से. दिस इज 1s एंड दिस इज 10s. चलिए ऐड कर लेते हैं. वी हैव टू ऐड 8 and 5. 8 और 5 को हमें ऐड करना है. अगेन कीप द बिगर नंबर इन माइंड. मतलब आपको 8 को माइंड में रख लीजिए, 5 को फिंगर में ले लीजिए. ठीक है, तो 8 के आगे से गिनेंगे. 8 के बाद क्या था? 9 10 11 12 13. 9 10 11 12 13 है ना. 8 plus 5 is 13. तो हमारा आंसर आएगा 3 डिजिट में, सॉरी 2 डिजिट में. जब भी 2 डिजिट होता है, 1 is ones, another one is tens. ये 1s हो गया, ये 10s हो गया. तो मैंने आपको बताया था ये 1s है और ये 10s है ना. तो 1s वाले को 1s के नीचे लिखेंगे और 10s वाले को 10s के कॉलम में डाल देंगे. 1s in 1s कॉलम
टेंस है टेंस कॉलम, क्योंकि ये वंस का कॉलम है और ये टेंस का कॉलम है. ठीक है. नाउ लेट्स ऐड 4 plus 2. 4 plus 2 is 6 और उस 6 में आपको ऐड करना है ये 1. तो 6 plus 1 is 7. 73 kg. 73 kg. Again, I'm repeating the writing of, mentioning of unit is very important. Otherwise ये नॉर्मल एडिशन ही है ना. तो यूनिट बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 73 kg और आंसर इज 73 kg. Now let's take another example where both the units आते हैं, जहां पर किलोग्राम भी है और ग्राम भी है, दोनों ही यूनिट का करते हैं. Question is, add 2 kg, 239 gram, 3 kg, 150 gram. Got it? यहां पर आपको क्या ऐड करना है? दिस विथ दिस. इन दोनों को नहीं ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करना है. गॉट इट? 2 kg एंड 239 ग्राम्स को ऐड नहीं करना है एक साथ. 3 kg एंड 150 ग्राम्स को एक साथ ऐड नहीं करना है. देयर इज एन एंड बिटवीन, मतलब कि दिस शुड बी एडेड विथ this. Okay, इसको इसके साथ ऐड करना है. Now you have to see here carefully that we have kg and g, मतलब किलोग्राम और ग्राम दोनों यूनिट है. यहाँ भी किलोग्राम और ग्राम दोनों यूनिट है ना. तो अब क्या करना है आपको? किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करेंगे और ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करेंगे. मतलब आप किलोग्राम के साथ ग्राम को नहीं ऐड कर सकते या ग्राम के साथ किलोग्राम को नहीं ऐड कर सकते. नाउ देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस. इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आप कॉलम वाइज कर सकते हैं. एक तरफ kg लिखिए, एक तरफ g लिखिए. ठीक है, एक तरफ kg और दूसरी तरफ g. kg में आप लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 239. ये वाला 2 और 239. क्यों? ये ग्राम के नीचे, क्योंकि ये ग्राम है और ये 2 जो है वो किलोग्राम है, इसलिए इसको किलोग्राम के नीचे हम लिखेंगे. गॉट इट? ठीक, क्योंकि ये किलोग्राम था तो किलोग्राम के नीचे, ये ग्राम था किलोग्राम के. अब यहाँ देखते हैं, ये 3 क्या है? किलोग्राम है, तो इसको भी किलोग्राम के नीचे लिखेंगे. और 150 क्या है? इट इज ग्राम. तो 150 को हम 150 के को यहाँ इस ग्राम के नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये भी ग्राम है. और फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं. ओके. अनदर वे इज, विदाउट राइटिंग दिस कॉलम वी कैन राइट 2 kg 239 ग्राम. ठीक है. और ऐड करेंगे 3 kg 150 ग्राम. You can add in both the ways. Both the ways are correct. दोनों ही तरीके सही हैं. आप चाहो तो किलोग्राम किलोग्राम ऐसे दो लिख सकते हो. ये 2 kg, ये 3 kg, दोनों kg एक साथ. 200
239 ग्राम एंड 150 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम एक साथ। ये तरीका भी है और एक ये तरीका भी है, कॉलम की तरह ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर जो आपको मिलेगा वो दोनों में आपको सेम ही आंसर मिलेगा, देयर विल बी नो चेंज। चलिए ऐड करके हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स ऐड इट फर्स्ट। 9 प्लस 0, 9 में अगर आप 0 ऐड करेंगे मतलब कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो 9 विल रिमेन 9। 3 और 5 दोनों को आपको ऐड करना है। 5 प्लस 3, 5 को माइंड में रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए और इसको काउंट कीजिए। कितना आएगा आंसर? 5 के आगे से गिनिए, 6, 7, 8 and you will get 8. 2 plus 1, 2 plus 1 is 3. नाउ ये हमारा ग्राम वाला हो गया, ठीक है, ये सिर्फ ग्राम का हुआ। अब ये किलोग्राम में करना है। ये अब सेपरेट है, ये सेपरेट है क्योंकि यूनिट अलग अलग है। तो 2 प्लस 3 कितना होगा? 5, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता है कि 5 किलोग्राम है और 389 ग्राम है। स्टिल वी हैव टू राइट हियर 5 kg 389 ग्राम, ऐसे आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू राइट आंसर सेपरेट, गॉट इट। अब सेम चीज जब आप यहां करोगे यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। देखिए 9 प्लस 0 इज 9 only, 5 प्लस 3 is 8, 2 plus 1 is 3 and we will make it gram. Here 3 plus 2 is 5 and the unit is kg. 5 kg 389 ग्राम। यहां पर आपको सेपरेटली ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर 5 किलोग्राम एंड 389 ग्राम। तो आप सेपरेटली लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट इज क्लियर हियर, बट हियर यू हैव टू राइट सेपरेटली। यहां पर आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा 5 किलोग्राम एंड 389 ग्राम, ठीक है। डन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि जब हम ये ऐड करते हैं मास को, वेट को, तो किलोग्राम और ग्राम को हमें सेपरेट रखना है और मिक्स नहीं करना है। ग्राम को ग्राम के साथ ही रहने देना है और किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही ऐड करना है। जब बोरो करना होगा इन सच केस ऑल्सो, बोरो में भी आप किलोग्राम में से ही किलोग्राम वाला बोरो करेगा और ग्राम में से ही ग्राम वाला बोरो करेगा। कन्वर्जन अभी आपके कोर्स में नहीं है इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। Okay. Now we have many sums of addition where you have to add either only grams or only kilograms or mixed gram and kilogram together. So we'll do one by one, एक एक करके हम करेंगे। मैं अभी आपके लिए एक सम आपके लिए कर रही हूँ जो सिंपली ग्राम वाला है। जैसे ऐसे लिखा है ऐड और 3 2 5 ग्राम और उसके साथ है 250 ग्राम। Now as you can see this sum has only gram, इसमें सिर्फ ग्राम को ऐड करना है, कोई किलोग्राम इसमें नहीं है। तो ये आराम से इसको आप ऐड करेंगे एंड यू विल राइट द यूनिट। 5 plus 0 is 5, 5 and 2 कितना होता है? 7, 3 plus 2 is 5 और सिंपली इसके साथ आप ग्राम लिख देंगे।
575 ग्राम, मतलब 575 ग्राम्स। ये बस, ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ही करना है। ऐसे ही आपको किलोग्राम्स वाले करने हैं, पर जहाँ पे किलोग्राम और ग्राम वाला है वहां पर आपको केयरफुल रहना है कि आपको किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ही करेंगे और ग्राम को ग्राम के साथ ही। ये वाले सम करेंगे, सारे करेंगे, जितने भी हैं आपके इस यूनिट में, वो सारा हम करेंगे, बट नॉट इन टुडेज वीडियो, वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, and now we will meet in the next video. Thank you.